क्या बेसिक डिफरेंस है? So today is February 23, and another salient features of the Indian Constitution is fundamental rights and the PSP, and we will study the both together, right? Now, if you see the rights, how we can define rights? Before we go to the fundamental rights, right, let's define rights. How we to define rights? Rights को define कैसे करेंगे? नेचुरल राइट तो टिपोलॉजी हो गया, मतलब टाइप वैरायटी होगी उसकी एक, उसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज राइट? हाउ वी कैन डिफाइन राइट? हिंदी में बोलते हैं हक, ये हमारा हक है, बेसिक अधिकार है, अधिकार भी बोलते हैं। अब वो अधिकार है क्या? कैसे अधिकार को हम डिफाइन करेंगे? हाउ वी विल डिफाइन हक, राइट्स? नो आइडिया? राइट्स पढ़े हो? राइट्स इज अ क्लेम ऑफ इंडिविजुअल. Whose claim it is? Individual claim. Against whom? Yeah. Against state. But not only against, right? For sometimes, for example, let me talk about the claim of individual against state. You have claim right to life. You have claim on a right to speech and expression. You have claim to study, right? State may not come and say, you don't study, right? But you have claim, right to freedom. State may come and arrest you, but you can claim that no, free movement is my right, मेरा हक है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, right? So right is a claim of individual. claim को हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं, claim को हिंदी में अधिकार नहीं बोलेंगे. क्लेम करना किसी के ऊपर, हाँ, मेरा हक जताना. Anyway, claim समझ रहे हो ना ये, right? Now if you look at it, is a claim of individual against a state, sometimes, or against collective body. What is collective body refers to here? It may be, church, or it may be temple, or it may be social organization like खाप पंचायत. वो बोलेगा, आप बोलोगे कि आपको मैरिज करना है, वो बोलेगा मैरिज करना है तो अपनी सोसाइटी में करना है, राइट? अपनी कम्युनिटी में करना है, राइट? सिमिलरली टेम्पल विल टेल यू, और चर्च विल टेल यू, you have to marry according to the religious ritual. You may say, no, I will not going to do it, right? So it is a claim against individual, or sometimes against family. Family also try to suppress your rights. तुम्हारा होता है ना, फैमिली राइट्स कर्ब करती है, यहां जाऊंगी नहीं जाने ना, यहां जाऊंगी नहीं जाना है, करती है क्या? किसके अगेंस्ट? राइट्स का, फिर राइट्स का आप क्लेम नहीं कर रहे. राइट का क्लेम का मतलब ही नहीं कि यू हैव टू गो अगेंस्ट, यू हैव टू एक्चुअली चेक, राइट? सो ये राइट इज अ क्लेम ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट, or against collective body or family. Sometimes family will, this claim must be reasonable.
Now, let me tell you, this rights is a modern concept. Modern concept, right? Evolve along with liberalism or liberal philosophy, right? है ना? आप देखोगे कि ये 16th सेंचुरी में इवॉल्व हुआ है लिबरलिज्म, राइट? और लिबरलिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे आप लिबरलिज्म के, राइट? लिबरलिज्म का पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ह्यूमन आर रैशनल, ह्यूमन बीइंग इज रैशनल. कौन ह्यूमन बीइंग कैसा है? वो रैशनल है. दे कैन टेक डिसीजन ऑफ देयर ओन अफेयर, राइट? They can be the best judge of their own interest. Everyone, right? So that is a claim. Now, liberalism also believe in individualism. It gives priority to individual over the society or over the church, right? It gives priority to individual, right? It focus on liberty, है ना? Liberty is a core idea of liberalism, है ना? Right? Now, if you look at it, focus on equality. What does it mean? Everyone are equal. Everyone is equal, right? So rights भी सबके पास बराबर का rights है. Liberty भी सबके पास बराबर का है. No one has more liberty than other. Otherwise, that becomes that does not remain liberty. It becomes license. License का मतलब पता है? Uncontrolled freedom. अपना गाड़ी है, जिधर मर्जी उधर चलाओ. क्या ट्रैफिक रूल, हाँ, क्या रोड और क्या पेवमेंट, है ना? क्या स्पीड लिमिट, कोई मतलब नहीं. स्पीड लिमिट को रिस्पेक्ट करना. But that is wrong. License is wrong. License can create anarchy, and that's why there is a law. Why law? Because there is no law, there cannot be liberty. जब तक लॉ नहीं होगा तब तक लिबर्टी नहीं होगा, right? So in order to ensure liberty, we need at least law, not multiple law, least law, right? For example, road पे रुक जाना, when there is a red light you have to stop, right? When you are at the 18 you are allowed to marry, right? You must use your reason. You must you ride your bike, but a speed must be reasonable, right? Depends on the road or depends on the crowd on the road. Making sense, right? It's a very modern idea. समझ में आया? One of the essential point of liberalism is rights, a claim of individual, right? One of the then talked about tolerance. जिनको पढ़ाया है tolerance, then constitutionalism. ये सब liberal idea है. We are living in a liberal world. Let me tell you, we are living in liberal world. अच्छा, उससे पहले कौन सी दुनिया थी जो इतनी ऐसी दुनिया आ गई और जिसको हमें अच्छा लग रहा है? इसके पहले कौन सा वर्ड था? फ्यूडलिज्म था. कौन सी दुनिया थी? फ्यूडलिज्म था. अच्छा, फ्यूडलिज्म का कैसी थी? फ्यूडलिज्म, राइट, कलेक्टिव पे ज्यादा जोर देता था. उसके अलावा आप देखेंगे इसका सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक था हायरार्की. There was a hierarchy in feudalism, right? Even within temple there is a hierarchy, within society there is a hierarchy, right? Second, there were restrictions. Why restrictions? Right? Because of prominence of religion. Prominence of religion.
रिलीजन का बहुत बड़ा बोलबाला था। कब? फ्यूडल एज में। क्या कारण, मतलब रिलीजन का बोलबाला? क्योंकि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक थी। इफ यू लुक एट फ्यूडल, you know, people believe that religion is supreme, right? And people have no scientific characteristics, scientific region, rationality. उसको जज नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज, लिबरल कहता है कि नॉलेज शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक आइडिया, राइट? यू कैन नॉट बिलीव ऑन सुपरस्टिशन, यू कैन नॉट बिलीव ऑन सर्टेन थिंग्स विच इज नॉट प्रूव्ड। मॉडर्निटी कहां से आती है? यही तो मॉडर्निटी है। Those who believes in this idea, that is called modern, right? वही तो लोग मॉडर्न कहलाते हैं। आइए आइए, जो इस बातों में बिलीव करता है, इसको हम क्या कहते थे? मेडिएबल। Why? Because there was a prominence of religion. People believed on divine right theory. वहां पर क्या था? God. There was a prominence of God, right? That was challenged in the modern era. नहीं, बरसात हुआ तो गॉड, बरसात नहीं हुआ गॉड, तुम्हारा बेटा जिया और लड़का मतलब बच्चा जिया तो गॉड, नहीं जिया गॉड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडस। पहले तो बहुत रीजनलिटी की बात थी। इफ यू लुक एट एंशिएंट सोसाइटी वाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल रैशनैलिटी। It was a medieval era where the dominance of superstition, orthodoxy becomes omnipresent. Initial era में नहीं था। The Varna system was developed in certain period of time. इंडिया में आया नहीं, इंडिया में डेवलप हुआ। इंडिया में कास्ट कहीं से आया नहीं, इंडिया में डेवलप हुआ। सोर्स मनुस्मृति नहीं है। मनुस्मृति बेसिकली कोडिफाइड द लॉ। व्हाट Manu saw, right? Manu codified it. There was already caste system, there was already Varna system. नहीं नहीं नहीं, नो, एंशिएंट में हो गया। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, नो, देयर इज एवरी सोसाइटी डेवलप्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, उसको बोलते हैं। एवरी सोसाइटी डेवलप्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या होता है? सोसाइटी को अलग अलग बांटना होता है ना। यहीं पर 5 दिन रहोगे तो आपस में बांट लोगे, मैं तुमसे बड़ा, तुम मुझसे छोटा, तुम मुझसे बड़ी, मैं तुमसे छोटी। दैट इज कॉल्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इन दोनों ने बांट रखा है, देखो। सोशल, राइट? जब बड़े लेवल पे रहेंगे तो ऐसे बांट लेंगे। परहैप्स उससे पहले ही हुआ। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे, अब मैं बता रहा हूं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, जैसे ऋग्वैदिक पीरियड है, और जहां पे एक ऐसा पीरियड है जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से चल रही है चीजें। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट विच इज रिचुअली कंसिडर्ड एज अ सुप्रीम। वेदाज, उपनिषद, धर्मशास्त्र, दिस एंड दैट, राइट? उसको चैलेंज किया किसने? बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ने, लोकायत फिलॉसफी ने, लोकायत फिलॉसफी ने रिजेक्ट किया। अब इन्होंने अपने आप को रिवाइव किया और एक नई फिलॉसफी लाई कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र का। द एंटायर अर्थशास्त्र इज बेस्ड ऑन रीजन एंड रैशनैलिटी। समझ में? जब ग्रीक में बढ़ेंगे आप, तो ग्रीक में नॉलेज वाज बेस्ड, ऑन natural science. Philosophers were more concerned about the, pattern of star, sun, right? Why earth, what made of it, कैसे बना। बाद में जाकर के सोसाइटी के बारे में बात करने लग जाते हैं। कौन? सोक्रेटिस। इसीलिए सुकरात को हम कहते हैं
फादर ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, मेडिवल टाइम में आते आते ये सब वो चीज खत्म हो गया, राइट। 5th सेंचुरी तक आते आते सब कुछ खत्म हो गया। एंड देयर वाज अ एम्पायर एज, देयर वाज अ प्रोमिनेंस ऑफ रिलीजन इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू initiate a new work, you have to go to your priest and ask, I want to open a new work. Or if you open, now priest will come to you or bola, this is not the right time to open your work, right? Look, I'm just telling you the time, इस टाइम पे आपको काम करना है, राइट। वो चीजें इतनी बढ़ गई कि इवन स्मॉलर थिंग, अगर आपको जाना है 10 किलोमीटर, तो आज उत्तर दक्षिण में राहु है, केतु है, नहीं मत जाना। आज फलाना चीज है मत करना, आज ये है मत करना, आज इसके लिए सही वक्त नहीं है, आज इसके लिए। Now there was a lots of restrictions, and if you look at liberal philosophy, it rejected this entire idea and focused on scientific idea, scientific rationality, right? समझ में आया? They focused on scientific rationality. यहां पर हायरार्की थी, यूरोप में भी थी, इंडिया में भी थी। लिबरल आइडिया आया तो उन्होंने फोकस, इन्होंने चैलेंज किया। And that's why liberty is a core idea of liberty, मतलब freedom. Freedom was the core idea of liberalism, right? और इसी टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी टाइम पे होता है, लोग गांव से सिटी की तरफ मूवमेंट करते हैं, राइट? लिबरलिज्म इज अ फिलॉसफी। लिबरलिज्म क्या है? फिलॉसफी है, राइट। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, यहां पर इकोनॉमी क्या था? यहां पर इकोनॉमी एग्रेरियन कंट्रोल था, इट वाज अ एग्रेरियन इकोनॉमी। यहां पर क्या हो गया? इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यस, कैपिटलिज्म। Capitalism was the economic face of liberalism. समझ में आया? Liberalism was a revolutionary idea, right, which focused on rights. मैं पीछे ले गया आप लोगों को, थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्लास में। बस आप नहीं गए थे और मुझे नहीं पता, इन लोगों को मैंने राइट्स नहीं पढ़ाया है, ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को ले गया। व्हाट आइडिया? तो राइट का क्या है? राइट इज अ क्लेम ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट और अगेंस्ट कलेक्टिव बॉडी और फैमिली। नाउ इफ यू लुक एट इन मेडिवल इंडिया, द राइट थ्योरी वाज कॉल्ड डिवाइन राइट थ्योरी। डिवाइन राइट, यहां पर एक जो थ्योरी थी उसको कहते थे डिवाइन राइट थ्योरी, बड़ा पॉपुलर था। इनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डिवाइन राइट थ्योरी, गॉड हैज सेंट एडम एंड ईव। And if you look at the Christian philosophy, God ने किसको भेजा? एडम और ईव को, with unconditional power to rule over the world. Got the idea? And the successor of Adam and Eve becomes monarch, and successive monarchs are, right, the higher of the Adam and Eve, and therefore they have unconditional power over the entire territory, entire resources, entire people. They are king, we are subject, not slave, subject. Raja or Praja. Got the idea? Got the idea? Now, but if you look at in 16th century, 17th century, there is a lots of movement, right? For example, Renaissance. Renaissance का नाम सुने हो? Renaissance was awakening, right, or reawakening of people. बताए कि मेडिवल इंडिया ऐसा हो गया था। एंशिएंट में क्या था कि एंशिएंट में लोग, कहा जाता है कि लोग रीजन को वैल्यू देते थे, रैशनैलिटी को वैल्यू देते थे। तो यहां पर लोग जगे हुए थे, यहां पर लोग सो गए, इसलिए उनको रीअवेकनिंग करा रहा था कि थिंक अबाउट योर रीजन। ओह, दिस इज ऑर्थोडॉक्सी, थिंक अबाउट योर रीजन, इज इट वैलिड, राइट? कि इंद्र वर्षा करा रहा है, यहां पर कुछ भी होता था तो गॉड,
मैं बता, बारिश हुई, क्यों हुई? इंद्र, राइट। अच्छा, उसका लड़का मर गया, क्यों मर गया? ऐसा किया। कोई धनी है, क्यों धनी है? बिकॉज उसने पूर्ण जन्म में पुण्य किए हैं, दान बहुत किया है, ठीक है, इसलिए अच्छा हालत है। अब इस लाइफ में बुरी हालत है, तो देख लो, थोड़ा दान वान कर दो कि अगले लाइफ में कुछ अच्छा मिले। दैट वाज अ थियरी, बेसिकली वेरी प्रिवेलेंट थियरी, राइट। इंडिया में, गांव में अभी भी बहुत सारी प्रचलित है, बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित है, राइट। वी आर लिविंग इन अ वेरी मिक्स टाइप ऑफ वर्ल्ड। नहीं, our appearance most of the time is like modern, our mind sometimes medieval, sometimes modern. नहीं होता है ना, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एनीवे, मैं राइट्स पढ़ा रहा हूं, नॉट टीचिंग फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, राइट। तो राइट्स इज अ क्लेम ऑफ इंडिविजुअल, समझ में आया? नाउ इफ यू लुक एट इसके अगेंस्ट में एक दूसरा राइट्स आया जिसका नाम था नेचुरल राइट थियरी। ये लिख लिया तो मैंने मिटा दिया। अच्छा, तो पहला राइट थियरी कौन था? डिवाइन राइट थियरी, दैट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन राइट डिवाइन या theory. Now the first right against them was natural right theory. What is a natural right? हाँ. Now if you look at many philosophers, rejected the divine right theory, and they advocated that no, every individual have certain inalienable rights. Inalienable मतलब inseparable. By birth उसके पास कुछ राइट्स आ गया, फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ, नहीं मार सकते आप, माँ बाप भी नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। ए पर्सन हैज कम ऑन दिस अर्थ, दे हैव सर्टेन inalienable, inseparable rights, ठीक है। So that is called natural right, right? Many philosophers like Hobbes, you all know, like Locke, both advocated that all men are equal and have certain inalienable rights, right? The rights by birth, that is called natural right. समझ में आया? Like right to life. Now अब जब बात करते हैं right to life, now right to life gives you several rights. Let me tell you, one right gives you another set of rights. For example, right to education is available with us. Now when you get educated, what do you need after that? Job. Then you talk about right to employment, right? Equal opportunity और so on so forth, right? So अगर आप देखेंगे right to life है, तो ये आपको बोलोगे right to food भी हमें चाहिए, तभी तो लाइफ रहेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी ना। So right to life means right to food, right to walk. या प्रिजन में रहना है, प्रिजन में you cannot see, cannot stay, right? Or you cannot live a dignified life. Right to walk, right to freedom, right to property, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं है तो लाइफ नहीं है ना, ठीक है। स्पेशली मोबाइल, यू मस्ट पोजेस इट, है ना। दूर संचार के लिए भी, राइट, संचार के लिए भी और मनोरंजन के लिए भी, और कुछ भी पूछना हो तो भी। मान लो हम, क्या होता है, कहीं हम जाते हैं तो क्या करते हैं, अब लोग से नहीं पूछते, हम किससे पूछते? गूगल से पूछते, बताओ रास्ता कहाँ है। ह्यूमन इंटरेक्शन बिकमिंग नैरो डाउन nowadays, nahi, right? And it creating problem. Let me tell you, there are lots of mental health issues,
And one of the contributor in mental health issues is mobile. One of the, right? But also the aspirations in this material world. नहीं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, है ना? कितना एस्पिरेशन है लोगों के पास? हाँ, रियली, लेट मी टेल यू, बहुत एस्पिरेशन है. जॉब का भी इतना एस्पिरेशन है, ये जॉब नहीं, ये वाला जॉब चाहिए. That is a, you know, the features of capitalism. Capitalism has given lots of aspirations. It had produced aspirations, right? आप पढ़ोगे mass culture इसने produce किया, बताया था ना? It produced mass culture. It produced some homogeneity, cultural homogeneity, right? ये बताता है कि yes, इतना तो चाहिए minimum. सबको, हाँ, सबको कुछ ना कुछ चाहिए. फोन चाहिए, राइट? भला ही इनकम 10,000 वाला हो ना हो, 10,000 का मोबाइल चाहिए. घर में तो तेल हो ना हो, एक मोबाइल चाहिए. एनीवे, सो राइट टू लाइफ वाज द फर्स्ट सेट ऑफ राइट्स. ठीक है? नाउ देन द सेकंड सेट ऑफ राइट्स वाज लीगल राइट्स. हाउ वी कैन डिफाइन लीगल राइट्स? Legal rights are those rights that was provided by the Constitution and the state. Not Constitution. Then by the state or the state. Yeah, rights recognized by the state. Rights recognized by the state. If you talk about, you know, in political theory, you know, Jeremy Bentham was actually supporter of legal rights. All utilitarian were Jeremy Bentham, J.S. Mill, all were actually supporter of legal rights, and they rejected the natural right of Hobbes and Locke. उन्होंने रिजेक्ट किया उसको, राइट? लीगल राइट्स कैसा हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल आरटीआई. आरटीआई इज योर लीगल राइट अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट? और फॉर एग्जांपल अबॉर्शन इज अ लीगल राइट फॉर वुमन under MPTA, Medical Termination Pregnancy Act. क्या क्या हो गया? एक्सटेंशन कहेंगे, हाँ, अलग है वो. यस, there is another set of rights. So for example RTI, under RTI Act, right? Or for example under RTI Act 2005, or for example right to employment under MG Narega, right to employment under MG Narega, right? What are the other rights, legal rights? मैंने अभी कहा abortion under the MPTA Act 2000, अब amendment हो गया अभी 2022 में, right? Medical termination MPTA बोलते हैं, Medical Pregnancy Termination Act, Termination Amendment Act, Act 2022. Pregnancy, abortion has become a legal right for women. Right? First time it was identified in 1974 in India. पहली बार ये बना था कब? MPTA कब बना था? 1974, which has been actually amended in 2012. Huh? For example, marriage. Is marriage a natural right or legal right? Sometimes it overlaps. Let me tell you. ऐसा नहीं कि separate हो जाता है. Right? Your legal right. But at what age? Can a person do marry in below the age of 18? ठीक है? तो ध्यान में रखना. Right? So your marriage is your,
legal right, but after 18. So for example, right to marry, under Marriage Act. Okay? So there are multiple, for example, protection from domestic violence is a legal right. Right? Protection from violence, domestic violence, under Domestic Violence Act 2005, right? Or protection from violence for SC/ST under the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989. समझ में आ रहा है legal right? There are a series of legal right. Right? For example, protection from sexual harassment at workplace for women. Protection from sexual harassment for children, POCSO Act. सुना है? POCSO Act मूवी देखा है? एक ही बंदा काफी है, एक ही बंदा काफी है, यही मूवी का नाम है ना, मनोज वाजपेयी का. तो POCSO Act. So there are a series of law, legal. समझ में आया? समझ में आया? Legal right? Sir, clear? Legal right? Now after the legal right, let's talk about the third type of rights called fundamental rights. How we can define fundamental rights that we are going to study? राइट पहले तो समझ में आना चाहिए है क्या ये, उसके बाद आगे पीछे डाटा फाटा देख लेंगे हम. राइट हाउ वी कैन डिफाइन फंडामेंटल राइट? That was given by the state or a constitution to the citizens, and it is necessary for every individual. What do you mean by fundamental? फंडामेंटल मतलब क्या होता है सौरभ? बेसिक. यस, बेसिक, इसेंशियल. मतलब फंडामेंटल कोर्स मतलब क्या होता है? बेसिक कोर्स, इसेंशियल कोर्स. मतलब उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, है ना. खाना फंडामेंटल है लोगों के लिए, आप भूखा नहीं रख सकते, है ना, है ना. और उसमें भी कुछ बेसिक खाना मिलना चाहिए. बेसिक मतलब बेसिक खाना क्या होना चाहिए? चावल दाल. अरे किसी को चावल दाल पसंद ना हो तो रोटी सब्जी. बट पिज्जा, व्हाट अबाउट पिज्जा? इज इट बेसिक? नहीं. क्या किसके लिए हो सकता है? किसी के लिए वो बेसिक हो सकता है. यू आर राइट, बिकॉज पीपल आर हाँ इटली में बैठे होते तो एग्जैक्टली राइट. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ द फंडामेंटल राइट्स डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. नाउ देन fundamental right differs from country to country. So each country, recognize certain set of rights. For example, each country recognize certain set of food that is basic to human being, right? Without which life cannot be called dignified life or dignified food. मिट्टी नहीं खिला सकते, है ना. You have to give certain, carbo, right? Carbs बोलते ना, और protein और न्यूट्रिशंस और विटामिन्स और मिनरल्स डालना पड़ेगा, देना पड़ेगा. Similarly, every country recognize certain set of rights as a fundamental rights, a basic rights, without which life cannot be called democratic and dignified. Certain set of food can be recognized. Now she rightly pointed कि हर country में अलग अलग हो सकता है. Similarly, if you look at fundamental rights are different in India, different in America. समझ में आ रहा है fundamental right? So if you look at a set of rights had been recognized as a fundamental, essential, basics in each country, right? Without in order to allow individual to develop themselves, to live a dignified life, right? A democratic life.
right? A happy life or prosperous life or dignified life, right? That is called fundamental right. In India, we have recognized 6 set of rights. Earlier it was 7 set, now it has 6 set of rights. 1 set we have transferred. समझ में आ रहा है? तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? A set of rights has been recognized as basic or fundamental in order to develop full potential. In order to develop full potential and to live democratic and dignified life. Right? You can define in multiple way, right? But basic इसका essence ये है कि certain rights are essential. ठीक है? And it vary from country to country. For example, India have explained 6 set of rights. If you go to the US has different sets of rights. Right? If you go to UK, where rights have been given so much priority, even over the law. Right? समझ में आया fundamental right? अच्छा, what is human rights? सुना है ना? अरे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है भाई साहब, राइट? सुना है ना? ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है. यूनाइटेड नेशंस often talks about the violation of human rights when it interacts with China, when it interacts with India also. सुना है ना? सॉरी, ये फंडामेंटल राइट्स ये ह्यूमन के लिए इवॉल्व हुआ था. There are animal rights also. Animal rights also. There are animal activists. And they argue that, if individual have a certain set of inalienable rights, animal also. ठीक है? But हम इतना इवॉल्व नहीं हुए, कहीं भी नहीं हुए पूरी दुनिया में. हाँ हाँ है, एक्ट है. क्रूवालिटी नहीं कर सकते, बट चिकन को काटना ऐसा तो नहीं है कि चिकन नहीं बैन हो, ऐसा प्रोहिबिशन है. मीट इज अ वाइडली मीट इज ईटन, राइट? इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, वन ऑफ द लार्जेस्ट, थर्ड या फोर्थ, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मीट. ठीक है? तो जब हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग के लिए कर रहे हैं. ठीक है? अच्छा, ह्यूमन राइट को कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलो. नहीं, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल राइट एंड ह्यूमन राइट? A set of rights that are essential for everyone means every human that was provided by UPSC. Yeah, right. And it's applicable beyond the borders of the country. Exactly. Correct. Look at human rights is a very recent concept of rights. Very recently it evolved in 1945, 46, 47, 48. Now I told you that right is a claim of individual against state. But what if someone have no state? है ना? For example, Rohingya refugee. सुना है रोहिंग्या के बारे में? Rohingya refugee. Or now if you look at there's a war between Philistine and
right? The Hamas, oh sorry, Palestine and Israel, Israel and Hamas. Now there are lots of migration. People will migrate in the neighboring country. Will migrate? Definitely they will migrate, especially women and children definitely will migrate. Right? Now if you look at this migration, this stateless population is something new to the human society. Right? This stateless population is certain new. If you look at World War I, World War II produced lots of refugee. राइट आज जो इजराइल लड़ रहा है कल वो रेफ्यूजी हुआ करता था, उसके पास राज्य नाम का चीज नहीं था. इजराइल इज अ न्यू स्टेट दैट वाज फॉर्म्ड इन 1948. The community itself was dispersed, right? It had no rights, because rights is always a claim against the state. But what if you don't have a state? You don't have rights. What the idea? Then if you look at the global leader, philosopher, talked about there should be certain set of rights that should be available to anyone, even individual have state or not, doesn't matter. It doesn't matter whether individual have a state or not. Certain rights are inalienable, cannot be called or cannot be denied, even that individual is not a citizen basically. समझ में आ रहा है? Right? And if you look at United Nations General Assembly on क्या तारीख था? December 10, 1948. It issued a UDHR. What is UDHR मतलब? Universal Declaration of Human Rights. Now this UDHR, Universal Declaration of Rights, declared a set of rights. Those all rights are called human rights. Right? The ground, the basis of human rights is a UDHR. समझ में आया? Right? So a set of rights recognized by UDHR called as human rights. Right? Because human have certain, or all human are entitled to certain rights because of being human. क्या नहीं है? किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. Yeah, that is truth. Moral rights is obligation. If I talk about fundamental rights is a obligation on a state. Right? In case of violation of fundamental right, one can reach to court. One can approach to the court if fundamental rights are violated. But if you look at, in case of human right, that one cannot approach to international court or other court. But एक तो लज्जा और शर्म की बात भी होती है ना. आपके घर में कोई है और खाना नहीं दे रहे हो, गलत बात है ना. मतलब खाना आप दूसरे को खिला रहे हो, खाना फेंक रहे हो और अपने घर में खाना नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है ना. या आई नो, बट दैट इज गलत बात है ना. ये ह्यूमन राइट इज अ मोरल अपील. Human right was a moral appeal to the world that if the certain population, certain people have entered to your territory, it's your moral obligation to take care of them. अगर नहीं करेगा तो आप क्या कर सकते हो? It is not legally binding. Human rights are not legally binding. Should में तो बहुत कुछ हो जाता है. नहीं, शुड में तो फिर जब बात करेंगे, राइट, तो बहुत बड़ी बात, बहुत दूर तक जाएगी. फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा. ऐसे में तो रिफ्यूजीज आदमी अभी जैसे कुछ है कि मजबूरी से रिफ्यूजीज बने और
टारगेटेड लोग बॉर्डर क्रॉस करने लगे। That is not refugee. When that is called illegal migrants, when they cross the border without permission of the government. The difference between refugee and illegal migrants are refugee crossed border because of the war, because of civil war. For example, look at the Myanmar. Myanmar is facing civil war currently. Now people may migrate here and there. That would be the refugee. Right? Myanmar has snatched citizenship from Rohingya. You know, Rohingya was a citizen of a rank A state in Myanmar till 1988. It amended Citizenship Act called Citizenship Amendment Act 1988, and it basically, snatched citizenship from Rohingya community, which was Muslim community living in a particular area, located in a particular area, right? And when Rohingya community responded with certain violence, होता है ना, एक कम्युनिटी रहोगे तो भाई सब लोग गांधी नहीं बन सकता है, और रिवॉल्यूशनरी भी होगा, ऐसे कर देंगे हम, right? Now they actually, certain group within the community responded with arms revolution. जब आर्म्स की बात होगी तो क्या बात करते हैं, मॉडर्न स्टेट्स आर वेरी पावरफुल, राइट? मान लो कि गांधी भी बोलते मैं बंदूक से ही लूंगा, ना उनको पॉपुलर सपोर्ट मिलता, ना वो कुछ कर पाते। आर्म्स को सप्रेस करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है? Now look at Rohingya had been suppressed, not suppressed, they have been crushed by the Myanmar military. And consequently, the refugee crossed the border, right? They came to India, they went to, neighboring state like Bangladesh. So not ऐसा कि India से ज़्यादा बांग्लादेश में गए वो लोग। देता है, हाँ देता है। There is a United Nations Human Rights Council. It gives fund. There are human right food affairs. वो फूड देता है, बहुत काम करते हैं लोग। बनाया तो UN is dependent on the members ना, on fund ना, नहीं, वो फंड के लिए भी मेंबर स्टेट पे डिपेंड करता है, वो आप मानेंगे तो भी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, सबके लिए। यूनाइटेड नेशन का अपना थोड़ी सब कुछ है, अपना कुछ भी नहीं है ना, ये डिपेंड करता है कि कितना आप हेल्प करते हो, कितनी उसकी बात मानते हो। UPSC was actually concept developed by the United Nations. बाइंडिंग, अरे ये तो जो बाइंडिंग है वो तो हो ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जेनोसाइड इज अ बाइंडिंग, राइट? Recently South Africa moved to United Nations ICJ. आप लोग से ही तो बात कर रहा था मैंने, क्या था ना, ICJ। फिर ICJ ने कुछ वर्डिक्ट दिया कि यू स्टॉप जेनोसाइड। इजराइल ने कहा मैं नहीं मान रहा तुम्हारे बात, तो लीगल तो बात ही नहीं मानते, राइट? ये जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे कि लिबरल पर्सपेक्टिव क्या है, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, राइट? क्यों नहीं मानते, समझ में आया? अच्छा, सेट ऑफ राइट्स, ठीक है। नाउ कम टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू लुक एट राइट्स, अच्छा राइट्स क्या है, अब हम राइट्स को डिफाइन करो। राइट्स इज अ क्लेम ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट राइट्स। अब देखो इंडिया में बहुत सारा क्लेम था। इफ यू लुक एट द नेशनल मूवमेंट, there were several claims, right? For example, claim for employment, claim for equality between man and woman, claim for equal payment, claim for freedom of association, claim for right to vote, claim for non-discrimination, claim for equality, claim for right to freedom of religion,
claim for minority rights, right? Claim for protection of workers and peasantry, claim for women rights, prohibition of concentration of wealth, कि wealth एक जगह के हाथ में जाके concentrate ना हो। तो क्या किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, राइट्स को दो भाग में बांट लिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, राइट्स को जो भी क्लेम था, जितनी भी क्लेम थे, उसको क्या किया, दो भागों में बांट लिया। एक भाग था पार्ट 3, एक भाग को रखा पार्ट 3 में, एक भाग को रखा पार्ट 4 में। इसको कहा फंडामेंटल राइट और इसको कहा डीपीएसपी, है ना, राइट। अब ये जो राइट है ये जस्टिसिएबल बना दिया। जस्टिसिएबल मतलब क्या है, एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट, राइट। कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन। अगर ये वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। बट ये डिस्कस हुआ था कि क्या हम इसको भी इधर नहीं रख सकते, क्या बहुत डिस्कशन हुआ था। डिस्कशन ये हुआ था कि क्या हम इसको भी लीगल बनाया जाए, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें लोगों ने बोला कि देखो लीगल तो हम बना देंगे, कोई इश्यू नहीं है, सबको फंडामेंटल राइट में डाल दो, बट इज इट पॉसिबल, डज इंडिया हैव सर्ट दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेस। जब नहीं है तो क्या यहां पर रखने के बाद क्या होगा, इसको हम लीगली एनफोर्सिबल बना रहे हैं, राइट। क्या होगा, बहुत सारा मैटर कहां जाएगा, कोर्ट में, कोर्ट ओवरबर्डन हो जाएगा, है ना। एंड देयरफॉर बेटर इट शुड बी नॉन जस्टिसिएबल एंड बेसिकली डायरेक्शन टू द स्टेट कि आप ये करो ये करो ये करो ये करो, ठीक है। इट शुड बी द मोरल डायरेक्शन, इथिकल डायरेक्शन, राइट, इथिकल डायरेक्शन, मोरल भी होगा, इथिकल डायरेक्शन, right, a codified direction to the state, do this. For example, a state shall or state should set up the village administration, or a state should do welfare for SCs and ST, or a state should do something to promote equality between man and woman. A state should ensure justice, स्टेट क्या इंश्योर करेगा, जस्टिस, जो भी है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा डीपीएसपी है, इट इज नॉट जस्टिसिएबल। सौरभ समझ में आया आपका सवाल, अब थोड़ा थोड़ा आंसर मिल रहा होगा। सर इधर से इधर, इधर से इधर, इसलिए नहीं, नॉट जस्टिसिएबल बट fundamental in the governance, but fundamental in governance of country। ये फंडामेंटल है, जस्टिसिएबल नहीं है, बट ये फंडामेंटल यानी बेसिक गाइडलाइन है ये स्टेट का डीपीएसपी कि आप ये करोगे, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट नहीं करोगे, राइट, इनइक्वालिटी को घटाओगे, पॉवर्टी को कम करोगे, राइट, जैसे लीगल एड दोगे, बाद में बहुत सारी चीज इसमें भी जुड़े, इसमें भी जुड़े, यहां से इधर भी आए। तुमने कुछ चीज देखा इधर से इधर गया हो, इधर नहीं गया, वो कहीं और चला गया, वो कहीं और चला गया, वो गलती से यहां आ गया था, वो गलती से यहां आ गया था कि कोई जमींदार का प्रभाव था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे जमींदार का प्रभाव था, ठीक है।
उसलिए आ गया था वो यहाँ पर, उसको आना चाहिए ही नहीं था, राइट। उसको लेकर के बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम, समझ में आया। नाउ इफ यू लुक एट फंडामेंटल राइट्स आर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और बेसिकली दे आर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था ना, वो आर्टिकल 45 में था पहले, वो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, अब उधर से उधर ले गए, है ना। वो आर्टिकल 21A बन गया, ठीक है। तो ऐसा हुआ है कि इधर से इधर गया, इधर से इधर नहीं आया, ठीक है। अच्छा, सिविल ये क्या है, सब सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, बेसिकली सिविल राइट्स है, राइट। और ये क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर राइट्स है, इकोनॉमिक वेलफेयर राइट्स है, और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है, कह सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर राइट्स। सोशियो मतलब सोशल भी है और इकोनॉमिक भी है, हाँ, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशल भी है और इकोनॉमिक भी है, सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर की भी बात करता है। जैसे मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है डीपीएसपी, करता है ना। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नहीं पता है, अच्छा। आर्टिकल है 42, बेयर एक्ट है, आज में बेयर एक्ट भी मिला है, 42 है, 41 है SC/ST के लिए, ठीक है। तो ये सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर राइट्स है। यहां पर क्या है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। जैसे राइट प्रोटेस्ट करने का राइट जो है आपको है, प्रोटेस्ट करने का हक जो है, राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट्स है भाई, समझ में आया। नाउ लेट मी गो फर्दर। इफ यू लुक एट फंडामेंटल राइट इज अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स, क्या ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स। अब ये मैंने कह दिया, क्या है ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स, These rights are essential for human life and their dignity. ये भी तो इसेंशियल है। Yes, sir, but This is called second generation of rights. This second DPSP is called second generation of rights. first generation में सिर्फ पहले वो जरूरी है, उसके बाद ही आप further rights के लिए कुछ डिमांड नहीं कर सकते। अगर आपके पास right to life है नहीं, बट यहाँ पर भी जरूरी है, डिग्निटी जरूरी है भाई, और डिग्निटी तो इसमें आ जाता है, इकोनॉमिक वेलफेयर भी जरूरी है, मतलब खाना भी जरूरी है, जॉब। ये खुद से डिवाइड करना है ना, first generation। अरे बाबा, खुद से डिवाइड नहीं करना है, ये मैंने पढ़ाया था, ये क्लासिकल लिबरल की फिलॉसफी है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफर जो है, एक मिनट में कॉल ले लूं, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। मैंने कितने नंबर ब्लॉक करे हुए हैं, ट्रू कॉलर है उसको सरपास करके नंबर आ जाते हैं। चलो, एनीवे, why it is the first generation of rights? Because the rights developed by the first generation of philosopher of liberalism, like Locke इसकी बात करता है, राइट। जेम्स मिल इसकी बात करता है, बेंथम इसकी बात करता है। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ फिलोसफर जो थे ना, जिसको हम मानते हैं। और ये कौन बात करता है, सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स? ये मॉडर्न लिबरल करता है, जिसको हम पॉजिटिव लिबरल्स भी कहते हैं, मॉडर्न लिबरल्स भी कहते हैं। ये सेकेंड जनरेशन ऑफ थिंक करते हैं,
लिबरल फिलॉसफी में। They were the first generation of thinkers in liberal philosophy. They were the second generation of liberal philosophy. Right? For example, Harold Lasky. यहां पर कौन है? बहुत सारे हैं। हेरोल्ड लास्की, और कौन कौन है बताओ? रॉबर्ट नॉजिक कहां से लाओगे? हाना अरेंट नहीं था। मिल्टन कहां था? अरे इतना बताया मैंने, हेरोल्ड लास्की, टी.एच. ग्रीन, जे.ए. हॉब्सन, एल.टी. हॉबहॉस, याद है अब? एल.टी. हॉबहॉस, राइट? जेमकिंस, ये सब फिलोसफर है। ये पॉलिटिकल थियरी से आ रहा है, ये इसीलिए सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स कहते हैं। अच्छा, ये जो है फर्स्ट जनरेशन, इट इज अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। स्टेट का ऑब्लिगेशन है कि ये इंटरवीन नहीं करेगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 में क्या है? व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी। अब वर्ड कैसे लिखा गया है आर्टिकल 14? स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर, कैसे लिखा है? स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखो निगेटिवली वर्डेड है, स्टेट शैल नॉट डिनाई, मतलब स्टेट डिनाई नहीं करेगा, डिनाई कर ही नहीं सकता उसको। या आप आर्टिकल 14 पढ़ लो, ये भी नेगेटिव राइट्स है। ये कहता है नो सिटीजन, राइट, और स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेसेस ऑफ बर्थ, है ना? नॉट लगा रहा है ना। आर्टिकल 21 पढ़ लो, वो क्या कहता है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखो नॉट सब में लगाना जरूरी था क्या? जी हाँ, लगाना जरूरी था। नहीं करेगा। अब बोलते ना कि भाई हम घर में, जैसे घर में बोलते हैं, मामा तुम इस मैटर में तुम इंटरवेन नहीं करोगी, जो करना कर लो, इस मैटर में तुम्हें इंटरवेन नहीं करना है। होती है ना बात, पेरेंट्स से भी जब बात होती, दिस मैटर आई विल डिसाइड, रेस्ट यू डिसाइड अबाउट माई सेल्फ। क्या खाना देना है तुम्हें, या क्या कुछ करना है, या क्या करना है, दिस मैटर विल बी डिसाइडेड बाय माई सेल्फ। नाउ हाउ यू आर पुटिंग योर राइट्स क्लेम टू योर फैमिली, they will not intervene. Similarly, a state shall not intervene in certain domain, right? Am I making sense? For example, a state shall not intervene in your personal liberty, your privacy. State shall not intervene in your right to life. The state cannot take your right except procedure established by law. अगर आपने law को violate किया है तो then law shall take its own course, but a state will not intervene without anything, है ना? समझ में आ रहा है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, राइट? हम घर वाले को जो भी करना कर लो, भेदभाव मत करो, राइट? हमको लगता है कि भेदभाव कर रहे होते हैं, राइट? बट स्टेट इज नॉट अ पेरेंट, पेरेंट इज अ पेरेंट, स्टेट इज नॉट पेरेंट। समटाइम्स वी कंपेयर पेरेंट और स्टेट, बट स्टेट इज नॉट पेरेंट, राइट? और स्टेट कैन नॉट बी पेरेंट, वो पेरेंट हो भी नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव, दिस फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। समझ में आ रहा है? इट इज अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट। अच्छा, नेगेटिव ऑब्लिगेशन का मतलब समझ में आया, राइट? कि भाई स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा, स्टेट को प्रोटेक्ट करना है एक्चुअली। तो वहाँ पे डिवाइन राइट्स एंड
नेचुरल राइट्स का एग्जांपल में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में तो वही डिवाइन राइट्स कहाँ है फर्स्ट जनरेशन? नेचुरल राइट थ्योरी फर्स्ट जनरेशन राइट्स है। डिवाइन राइट्स डिवाइन कोई जनरेशन ही नहीं है उसका, वो डेड जनरेशन है, खत्म है, उसकी हिस्ट्री है वो, मतलब वो है लेकिन पास्ट में है, वो है नहीं। नेचुरल राइट्स आएगा, फर्स्ट जनरेशन में नेचुरल राइट्स आएगा, लॉक, हॉब्स। मॉडर्न में फंडामेंटल राइट्स हो गया, मॉडर्न में हाँ, मॉडर्न लिबरल, जो जिसकी लिबरल की बात बताया मैंने, राइट्स में बताया है ना मैंने, जब आपको राइट्स पढ़ाया था तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट, सेकंड जनरेशन ऑफ राइट, थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स पता है ना, समझ में आया? अच्छा, ये क्या है? इट इज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, इट इज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। अब बोलोगे सर ये क्या है? ये तो नेगेटिव तो समझ में आ गया कि स्टेट नहीं कर सकता। अब इसमें क्या है भाई? देखो, स्टेट इंटरवेंशन करता है, क्यों करता है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, राइट? घर वाले इंटरवेंशन करेंगे किसके लिए? हमारी अच्छाई के लिए। जैसे अब ये बोलेगी कि मैं पढ़ूंगा नहीं या पढ़ूंगी नहीं, स्टेट, अब घर वाले क्या करेंगे? कान पकड़ लेंगे बैठ पढ़ने के लिए। नो, दैट इज इंटरवेंशन फॉर you can realize, right, after reading that. For example, बचपन में हम कहते हैं स्कूल नहीं जाएंगे, कहते हैं घर वाले आप रोते रहो, कुछ भी करो, कुछ बस नहीं चलता है। उस देर में आप किसके हवाले होते हो? शिक्षक के हवाले, टीचर के हवाले, स्कूल के हवाले। एंड देन उसके बाद तो सीधा हो जाता है, पेरेंट्स निकले उसके बाद बच्चे सीधे हो जाते हैं। My kid, he used to cry a lot until we were in front, मतलब स्कूल गेट तक। एक बार छोड़ दो ना, 10 कदम हो गए, खत्म, घूम के आओ, चुप है, खेल रहा है, कि क्या है, हमारे सामने क्यों नाटक करना था, राइट? See parent of intervention or sometimes state intervention. For example, you are living in a slum. Now state can intervene and make the slum more dignified, मतलब वहीं पर झुग्गी के बदले मकान बना दिया आपको, है ना? सीवरेज लाइन डाल दिया, आपको राशन कार्ड दे दिया, समझ में आ रहा है? आपको एक हेल्थ कार्ड दे दिया, कुछ भी दिक्कत हो आप दिखा लेना, है ना? हो सके तो एम्प्लॉयमेंट दे दिया, कुछ एम्प्लॉयमेंट दे दिया, राइट? कुछ इंश्योरेंस करवा दिया। मेकिंग सेंस? सो बेसिकली पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, it is something positive rights which requires intervention of the state, right? समझ में आ रहा है? To look at the differences between the right, fundamental rights and one more thing. If you look at even within fundamental right, there are certain positive rights. So if you look at fundamental rights is a set of negative rights and positive rights both. For example, अगर आप इसमें देखोगे, मैंने आपको बताया आर्टिकल 14 नेगेटिव राइट्स है, आर्टिकल 15 नेगेटिव राइट्स है, आर्टिकल 21 नेगेटिव राइट्स है, बट व्हाट अबाउट आर्टिकल 21A? State intervenes for education, right? Or for example, article 15 clause 3, क्या है article 15 clause 3? नहीं, state shall make a special provision for women and children, right? थोड़ा जो दिया हूं उसको पढ़ के आओ, उसमें है लिखा हुआ, राइट? या हैंड रिटन नोट्स मिला होगा एक, पढ़ो, अब उसको देखो, बार बार पढ़ो, जैसे 14, 21 ये सब फेमस है, तो याद रहता है। ये 15 क्लॉज 3 भजो उसको पढ़ो, याद रहेगा, राइट? बिकॉज टॉक्स अबाउट द वुमेन एंड चिल्ड्रन, राइट? सो इफ यू लुक एट, समझ में आ रहा है?
Fundamental right is a set of negative rights as well as positive rights. Fundamental right is a set of negative rights as well as positive rights. Example, Article 15 clause 1 is negative right. clause 15 1 भी है and clause 15 clause 2 भी negative rights है, right? Whereas Article 15 clause 3, clause 4 and clause 5 are positive rights. Article 15 clause 3, 4, 5 are positive rights. ठीक है, 3 और 4 किसके लिए है? वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए. 4 किसके लिए है? SC, ST और SC, BC के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए. 5 किसके लिए है? 5 है EWS के लिए. 6 भी है ना? 6 भी है नहीं, 5 तक ही है, 5 तक ही है, right? Now, for example, 21A. 21 is a negative right. 21A is a 21A. 20 ये negative right है और ये positive right है भाई. समझ में आया? Negative rights are very essential. Like negative blood. पता है negative blood कितना important है? स्कार्स रिसोर्स है. किसी का अगर की बी नेगेटिव है या ओ नेगेटिव है, स्कार्स रिसोर्स होता है, राइट? ओ पॉजिटिव हर तीसरे बंदे के लिए होता है. ठीक है, समझ में आया? फॉर एग्जांपल कोविड के दौरान अगर आपके पास कोविड नेगेटिव था, बढ़िया था, कोविड पॉजिटिव आया, दिमाग खराब हो गया, होता था ना, राइट? तो नेगेटिव राइट्स आर नॉट पेजोरेटिव इन सेंस. पेजोरेटिव मतलब होता है गलत सेंस में नेगेटिव, ऐसा नहीं है. दे आर नेगेटिव मींस दे आर नेगेटिवली वर्डेड. कैन नॉट इंटरवीन, स्टेट कैन नॉट इंटरवीन, फैमिली कैन नॉट इंटरवीन in your certain rights. Individual can decide, only individual, about themselves, only individual. What the idea? For example, marriage, for example, reading, for example, कुछ भी बहुत सारे rights है that is negatively worded. ठीक है, including right to sleep. घर पे सोना और बताना मेरा ये फंडामेंटल राइट है. फिर गार्जियन बताएंगे तुम्हारा फंडामेंटल क्या है. मैं भी बताता हूँ, 2 किताब क्या पढ़ लिया, मेरे सर पे नाच रही है. फिर जो होगा वो तो बाद की बात है, राइट? नाउ इफ यू लुक एट DPSP is a set of positive rights. DPSP is a set of positive. यहां पर नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है यहां पर. फॉर एग्जाम्पल, स्टेट शैल इंटरवीन in order to prevent concentration of wealth. States shall intervene in order to reduce social inequality, social and economic inequality. States shall ensure social justice. States shall provide free legal aid. States shall make an arrangement for equal pay for equal work, right? States shall work so that all man and woman would get adequate livelihood, right? States shall work so that the resources can be distributed in a better way.
राइट टू फूड। हाँ हाँ, बहुत सारे प्रोविजंस है डीपीएसपी में, ठीक है, समझ में आया? बहुत ज्यादा हो रहा है? नहीं तो ज्यादा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं। अच्छा, समझ में आया फंडामेंटल राइट दोनों में क्या है? अब आओ, अब बात होगी है एक की, पहले बात कर लेते हैं। एक चीज और बता दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में जो झगड़ा है ना, जो झगड़ा है शुरू से लेके आज तक, इन्हीं दोनों को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट इसको प्रोटेक्ट करती है, करने की कोशिश करती है, और स्टेट जो पार्लियामेंट है वो इसको काम, इसके ऊपर काम करने का काम कोशिश करती है, या इसका नाम लेके कोशिश करती है। नाम तो जरूर ले लेती है कि देयर आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पता है पहला संवैधानिक संशोधन क्यों हुआ था? बताओ बताओ, मैं अभी भी बताऊंगा भी नहीं, बाद में बताऊंगा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ भी आइडिया हो? कब हुआ था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था, पहली बात। नहीं नहीं, हाँ 44, इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को इंसर्ट किया गया था, 9 शेड्यूल को इंसर्ट किया था। 9 शेड्यूल इसी के बाद बना है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बाद। आर्टिकल 19 में कुछ और रिस्ट्रिक्शंस जोड़े गए थे, राइट? ये 3 वाइटल था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में। क्यों? क्योंकि स्टेट लैंड रिफॉर्म कर रही थी, राइट? और जुडिशरी क्या कर रहा था? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31, राइट? जो पहला अमेंडमेंट एक्ट था इसी कारण था, इसी को to actually give some shape to the idea. State shall make a special provision for SC, ST and SCBC. लैंड से रिलेटेड नहीं था, लैंड से रिलेटेड दूसरा था। जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 में, 3 बातें हुई थी बड़ी बड़ी, उसके बाद और बड़ी हुई थी। पहली बड़ी बात थी कि मद्रास गवर्नमेंट ने ओबीसी और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया, ठीक है? अब एक लेडी थी जिनका नाम था चंपाकम दोराईराजन। वो लेडी क्या करती है, वो कोर्ट में पहुंच जाती है और कहती है कि ये जो रिजर्वेशन है, राइट, दिस रिजर्वेशन इज बेसिकली वायलेट्स आर्टिकल 15 क्लॉज 1, राइट? जो कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। बट ये तो कर दिया, कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन दे दिया। दूसरा आर्टिकल 29 क्लॉज 2, वो कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बोलोगे सर आपको कैसे याद है? बार बार मैं तो पढ़ाता हूं तो बार बार यही रिपीट ही करता हूं, राइट? 3-4 बार करोगे ना अपने आप रिपीट हो, मतलब 4 बार अगर आपने पढ़ा 10 बार, ठीक है, अपने आप बोलो, आईना के सामने जाओ और बोलो, याद करो, कोशिश कर, अपने आप याद हो जाएगा। 3-4 बार अगर याद कर लिया तो अपने आप, वो कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, वो जब आप मिरर के सामने जाओ और किसी को पढ़ाने की कोशिश करो, दैट्स द बेस्ट वे टू रिमेम्बर थिंग्स। ट्राई करो, दिमाग पर प्रेशर डालो कि याद आए। अपने एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार में आने लग जाएगा। बस अब तुम उसको याद करोगे तो आप पहले हाजिर हो जाएगा दिमाग में, राइट? अब चंपाकम दोराईराजन कोर्ट में गई तो हाई कोर्ट ने कहा ये तो सही कह रही है, ये लड़की तो सही कह रही है। उसने क्या किया, मद्रास जनरल ऑर्डर को स्ट्रक डाउन कर दिया, बोला कि ये गड़बड़ है, बेसिकली इट वायलेट्स आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 29 क्लॉज 2। अब मद्रास गवर्नमेंट क्या करे? मद्रास गवर्नमेंट तो ये कर रहा था
रिजर्वेशन दे रहा था ओबीसी को, राइट, एमबीसी को, जिसके बारे में लिखा नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। अब मद्रास गवर्नमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट करने का कि हाई कोर्ट सही कह रहा है, तुम ये तो तुम्हारा मद्रास जनरल ऑर्डर नोटिफिकेशन ही गड़बड़ है, राइट। देन अब क्या हुआ, मद्रास गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट कि कुछ करिए। एक ये कहानी थी। दूसरी कहानी थी, लैंड रिफॉर्म एक्ट आया 1948 में। अलग अलग जगहों पे लैंड इज अ लोकल स्टेट सब्जेक्ट। ईच स्टेट एक्चुअली पास देयर ओन लैंड रिफॉर्म एक्ट, राइट। नाउ that act was challenged in court. Why is it so? Because if you look at the article 13(2), मैंने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 डिस्कस नहीं किया कल, अभी कर लेता हूं थोड़ी देर में। 13 क्लॉज 2 ये कहता है, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट फंडामेंटल राइट। अब आपने लॉ बना दिया लैंड रिफॉर्म एक्ट, आपने फंडामेंटल राइट्स भी दे दिया, आर्टिकल 31 वायलेट करता है। नाउ the law had not been struck down by any high court, right, except the Patna High Court, right. Darbhanga Maharaj was one of the biggest landlord in India, right, and Kameshwar Singh actually reached to High Court, right, and Patna High Court struck down the Bihar Land Reform Act, right, and that compelled, now Bihar government requested, Sri Krishna Singh was the chief minister, he requested नेहरू क्या करे, अब तो ये तो कोर्ट तो बड़ा बवाल कर रहा है। कोर्ट ने मद्रास में बवाल कर दिया रिजर्वेशन को लेकर के। रिजर्वेशन वाज आल्सो इन ऑर्डर टू बेनिफिट द मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। नाउ लैंड रिफॉर्म वाज आल्सो टारगेटेड टू डिस्ट्रीब्यूट लैंड अमंग द लैंडलेस, वहां बवाल हो गया। थर्ड वाज, इफ यू सी, द मेनी गवर्नमेंट एक्चुअली सेंसर्ड द प्रेस। पंजाब गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, मद्रास गवर्नमेंट, क्या क्या उन्होंने प्रेस पे कर्व लगा दिए। क्या लगाए प्रेस पे? कर्व मतलब लिमिट करना, उसको लिमिट कर दिया। ये ज्यादा बोल रहा है, इसको बंद करो, ये ज्यादा बोल रही है, बंद करो इसको। अब तीनों प्रेस वाले कहां चले गए? कोर्ट चले गए। उस केस का नाम है रोमेश थापर केस। उस टाइम पे एक मैगजीन चलता था क्रॉसवर्ड मद्रास में। अब रोमेश थापर केस में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यू कैन नॉट कर्ब, यू कैन नॉट लिमिट ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब सरकार को वहां से भी झटका मिली। अब क्या करे सरकार? उन्होंने क्या किया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन फर्स्ट टाइम। एक ही साल बाद, एक साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ था, एक ही साल के अंदर आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ गई। ठीक है। अब जो दोराराजन मैडम का किस्सा था उसको ये इंट्रोड्यूस करके कर दिया, ये इंसर्ट किया गया, दोराराजन का क्लेम खत्म। 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया और कहा गया कि ऑल लॉ दैट हैज बीन पुट अंडर द 9th शेड्यूल शैल बी आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। राइट, जो भी लॉ इस लिस्ट में आएगा, शेड्यूल मतलब होता है लिस्ट, ठीक है ना, शेड्यूल मतलब होता है लिस्ट, तो जो भी यहां पर लॉ रखेंगे दैट विल बी आउट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। लैंड रिफॉर्म का झगड़ा खत्म। राइट, नाउ आर्टिकल 19 was also amended, right? Certain reasonable restrictions were imposed, right? You cannot speak even for the in against indecency, morality, ये सब जो वर्ड है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। जैसे you cannot speak something which against
goes to the India's federal relation. अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल सकते इंडिया में आप कुछ, समझ में आया? इजराइल के खिलाफ नहीं बोल सकते, या किसी ऐसी कंट्री के खिलाफ नहीं बोल सकते जो भारत के फेडरल रिलेशंस को हार्म करता हो, समझ में आया? आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो इंडिया के सिक्योरिटी को थ्रेट करता हो, समझ में आया? सो ये तीनों को इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता है? तब तो कभी भी गवर्नमेंट जो है ऑथोरिटेरियन बन जाएगी। सॉरी, तब तो गवर्नमेंट कभी भी ऑथोरिटेरियन बन जाएगी, कभी भी हमसे हमारा नहीं, बट ऐसा नहीं कि हर चीज को अमेंडमेंट कर देंगे आप। देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ना, जो कोर्ट कहता है कि यू कैन अमेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट एंड प्रीएम्बल, यू नो केशवानंद भारती केस, राइट, बट यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक स्ट्रक्चर टर्म ही नहीं समझ पाता हूं, बहुत कंफ्यूजन क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। रॉल्स पढ़ाया था मैंने आपको। रॉल्स कहता है कि जो जस्टिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन। रॉल्स कहता है कि वी कैन एग्री दैट जस्टिस इज गुड, injustice is bad, right? We can do injustice only in order to prevent the larger injustice. मान लीजिए कि सौरभ है, क्या उनके ऊपर हम ब्लेड चला सकते हैं? नहीं चला सकता ना मैं, बट मान लीजिए कि डॉक्टर है और इनको कुछ ये हो गया है, अब क्या डॉक्टर उनके ऊपर ब्लेड चला सकता है? चला सकता है। कॉन्टेक्स्ट बदल गया, देखो ये थोड़ा सा हार्म है to prevent the larger harm, समझ में आ रहा है? Right? So justice is a basic structure of any society, any institutions, right? We can do harm in order to prevent the larger harm, right? Right? ये जो आइडिया है ये बोरो किया गया, राइट? सीकरी ने, और कहा कि देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक आइडिया पे बेस्ड है, वो है बेसिक आइडिया, राइट, और बेसिक विजन। और बेसिक विजन क्या था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? डेमोक्रेटिक होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, सेकुलरिज्म होगी, राइट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। क्यों नहीं बना सकते? ऑलरेडी बना हुआ है, बनाने की जरूरत रहते हैं, ऑलरेडी बना हुआ है। कहां बना हुआ है मैं बता रहा हूं। लक्ष्मीकांत का 11th चैप्टर में एक पेज है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है? पेज नंबर शायद 11.6 और 7 है, करके देखिएगा, राइट? वहां पर एक लिस्ट है बेसिक स्ट्रक्चर, जो जो लिखा हुआ वो सब बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट? और वहां पर जजमेंट वाइज दिया है कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, समझ गए? नाउ अब आइए और देखिए कि जो आर्टिकल 12 है इसका मतलब क्या है। आर्टिकल 12, उसके बाद जाऊंगा। अभी मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स को दो भागों में बांटा, एक फंडामेंटल राइट्स हो गया, दूसरा हो गया डीपीएसपी, राइट? अभी हम 6 सेट ऑफ राइट्स में गए नहीं। अच्छा, आर्टिकल 12 क्या है? जो आर्टिकल 12 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या है? अच्छा, स्टेट के बारे में है कि सोसाइटी के बारे में है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है कि जुडिशरी के बारे में? हाँ, एक्चुअली आर्टिकल 12 डिफाइंस स्टेट। आर्टिकल 12 में क्या क्या है? स्टेट को डिफाइन किया है। जब मैंने आपको स्टेट पढ़ाया तो बताया था सारा कुछ। नाउ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या है? हाँ, नहीं बाबा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो डिफाइंड टेरिटरी नहीं है, वो स्टेट का थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। स्टेट हैज 4 एसेंशियल पार्ट: सोवरेनिटी,
या टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट। यहां पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस पार्लियामेंट, ये स्टेट है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, local government, other bodies like ONGC, SAIL, SEL, GIL, ये सब state है। Judiciary is not a state according to Article 12. University is also a state. Let me tell you, universities are also state. They also cannot violate fundamental right. But there are certain institutions which is recognized under Society Act. That is not a state, like NCERT. Right? ये legal definition है हमारा. So, state क्या है? According to Article 12, Government of India plus Parliament. Then second, Government of State plus State. यानी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी आदमी वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी छोटा सा छोटा प्यून भी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का छोटा सा छोटा आदमी, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, पुलिस वाला हो, ट्रैफिक पुलिस वाला हो, कोई भी हो, राइट, जो कोई भी हो, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। पार्लियामेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, राइट। लोकल गवर्नमेंट जैसे पार्लियामेंट, जैसे पंचायती राज है या म्युनिसिपैलिटी है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है ना, राइट। अदर बॉडी जैसे ओएनजीसी का नाम सुना होगा, राइट, ओएनजीसी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब अदर बॉडी है जिसको स्टेट कहते हैं, यानी पब्लिक बॉडी है ये। ओवरऑल ये क्या है? पब्लिक बॉडी है जिसको हम स्टेट कहेंगे। समझ में आया? स्टेट, हाँ। जुडिशरी इज नॉट अ स्टेट, जुडिशरी स्टेट नहीं है। तो क्या सही में स्टेट नहीं है तो क्या है ये? हाँ, जुडिशरी स्टेट है एज पर आर्टिकल 36। बट थोड़ा मैं और डीपर में जाता हूं। कोई भी जुडिशरी होता है ना, जुडिशरी के 3 ऑर्गन्स होते हैं, पता है आपको? जुडिशरी 3 तरीके से काम करती है। एक तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। जैसे आप गए तो वहां बाबू मिलेंगे आपको, वहां के स्टाफ मिलेंगे जो काम वाम करते रहते ना, आपको धक्का मार के नहीं निकाल सकते। लेट मी टेल यू, दे कांट, यू हैव राइट टू एंटर दैट ऑफिस, राइट? समझ में आया? Administrative premises, right? Similarly, judiciary has legislative legislative guideline, like Visakha guideline. विशाखा गाइडलाइन, राइट? अच्छा, विशाखा गाइडलाइन क्या था? What is Visakha guideline? विशाखा गाइडलाइन थोड़ी बहुत बड़ी है, बट मैं समरी बता देता हूँ। विशाखा गाइडलाइन वाज टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल harassment at workplace. That was Visakha guideline. A woman had been gang raped in Rajasthan, right? And the Rajasthan High Court held that the upper caste man cannot rape the lower caste man, lower caste woman, or a woman cannot be gang raped. Right? Although, if the matter come to the Supreme Court, देखो कैसे ऐसा कोर्ट भी बोल सकता है, look, right? Now सुप्रीम कोर्ट आया तो सबको पनिश करना कराया, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन निकाल दिया, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन निकाला कि देखो, वुमेन एट वर्क मस्ट हैव प्रोटेक्शन,
कहीं पर भी हो, राइट, यूनिवर्सिटी में हो, एनजीओ में हो, कहीं पर भी हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, डज नॉट मैटर, दे मस्ट हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, राइट। और यहीं पर जाकर के इसी का बेसिस बना करके एक लॉ बना था जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013, सुना है? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम हरासमेंट एक्ट 2013। ये सारे कहानी बता रहा हूं मैं, तो पढ़ाने लिखाने से कोई ज्यादा संबंध नहीं है, मतलब थियोरिटिकली, मुझे तो थियोरिटिकली पढ़ाना था, चाहिए था, बट मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऐसे कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ इधर उधर का। हाँ हाँ, पता होना चाहिए, ऑफ कोर्स। नाउ लेट मी टेल यू, दिस इज ऑल्सो, दिस टू पार्ट constitute a state under Article 12. But judiciary has another word called adjudication. What is adjudication means? That is a major work of judiciary. What do you mean by adjudication? अच्छा बोलो, एडजुडिकेशन मतलब क्या होगा? कह सकते हैं जो जज जो है, हाँ, जो ऑर्डर देते हैं, उसी टर्म को शायद आई थिंक एग्जीक्यूट करके झगड़े को निपटारा करते, झगड़ा मतलब इनके बीच में और आपके बीच में झगड़ा हो गया, तो जज जो कह दिया अब उसको आप स्टेट नहीं कह, या आपके और स्टेट के बीच में झगड़ा हो गया, आप और पुलिस वाले के बीच में झगड़ा हो गया, पुलिस वाला पहुंच गया या आप पहुंच गए, राइट, तो जो कोर्ट डिसीजन देगी वो स्टेट नहीं होगा। तो एडजुडिकेटरी पार्ट इज नॉट ए स्टेट। कोई जनरल इंसान पूछे कि क्या जुडिशरी स्टेट है, कॉमन से में, तो आपको कहना है नहीं, जुडिशरी स्टेट नहीं है। बट कोई और बताए कि अच्छा बताओ, जुडिशरी में तुम गए और तुमको धक्का मार के बाहर निकाल दिया, क्या करोगे, राइट, तो बोलेगे उसी जुडिशरी में मैं रिट फाइल कर दूंगा। समझ में आया? जुडिशरी कैन नॉट डू दैट और जुडिशियल स्टाफ कैन नॉट डू दैट। हाँ, जज कर सकता है टू सर्टेन एक्सटेंट, अगर कुछ उसको प्राइवेसी में बात करना है कुछ ऐसे, तो आपको बोलेगा आप बाहर रहिए, आपकी जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको जरूरत है तो आप जा सकते हैं। कोई भी केस का हियरिंग हो रहा है तो मैं ऐसे स्टेशन ले लेते हैं, मुझे माना कि हाँ, जाते लोग, रहते हैं, कोई मना नहीं करते, लोग जाके बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से जाके, इतना फुर्सत कहाँ है। जज बोलते हैं 11 बजे आऊंगा, 2:30 बजे आते हैं, राइट, 2:30 बजे केस देखते, हाँ 25 फरवरी को आना, 50, हाँ मतलब 23 मार्च को आना, सितंबर में आना, मतलब जो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जाती है, सुना है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्या गुस्सा से बोलता है, अच्छा वो बात अलग है। समझ में आया स्टेट के बारे में? अब आ जाओ थोड़ा एक चीज और बात कर लेता हूं, सुना है इसके बारे में, इसके बारे में, लॉ, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज लॉ? कानून क्या है? इमोशंस में आ रहा है। हाँ, ये तो लॉ पढ़ रही है, यस, व्हाट इज लॉ? It is a written document that written document that written document, no sir, word में नहीं आ पा रहा मुझे।
It is a written document that was framed by a parliament. Please try कर रहा हूँ मैं बोलने का. It is a written document framed by a parliament. Article 13 defines law. आर्टिकल 13 क्या करता है? लॉ को डिफाइन करता है, राइट? अब आर्टिकल 13 में क्लॉज 3 डिफाइन करता है. पहले क्लॉज 1 और 2 की बात कर लो. आर्टिकल 13 क्लॉज 3 डिफाइंस लॉ, राइट? बट यू शुड नो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड 13 क्लॉज 2. अब ये कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है. क्या? कि ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इफ इट वायलेट फंडामेंटल राइट्स शैल बी नल एंड वॉइड. अब कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, इंपोज हुआ? 26 जनवरी 1950 को. उससे पहले जो भी लॉ था ना, अंग्रेजों ने बना के गए थे, इफ दैट इज इनकंसिस्टेंट टू द फंडामेंटल राइट, दैट विल बी नल एंड वॉइड. अब ये क्या कहता है? ये कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ये किसकी बात करता है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ये क्या कहता है कि इवन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स. समझ में आ रहा है? ये क्या कहता है? ये क्या कहता है कि एनी प्री इंडिपेंडेंट लॉ और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ which violates fundamental rights shall be null and void. और ये क्या कहता है कि any state cannot make any law which violates the fundamental rights. If a state does, then that law shall be null and void. Null and void मतलब लड्डू, कुछ नहीं रहेगा, वो कुछ भी नहीं होगा, राइट? कुछ नहीं होगा उसका. That be mere piece of paper. कुछ भी करना कर लो. समझ में आया? नाउ बेड एक्ट खरीद लेना, और कुछ थोड़ा सा ना तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अगर सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो मैं थोड़ा एंगेज होऊंगा, तब आप थोड़ा सा एंगेज लोगे, ठीक है? नाउ थर्ड कहता है आर्टिकल 13 क्लॉज 3, लॉ इज एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, राइट? क्या क्या है? एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, बायलॉज, राइट? नोटिफिकेशन, customs. What do you mean by customs? Custom means any custom which is against fundamental rights and be null and void. Like custom of untouchability or a custom of patriarchy. Patriarchy is not guaranteed by the Constitution, right? Supreme Court has given several judgments in order to, dismantle patriarchy. Nahi, है ना? So these are the law basically. These are the law. समझ में आया? What is law according to Article 13? समझ में आया? These are the law. Act of the Parliament is law, right? Custom is a law. Notification, government notification is a law. Bylaws, ordinance is a law. Rules and regulation of the government is a law. हो गया डन? ठीक है, मना कर दिया, अब नहीं, ठीक है? अच्छा, एक और पॉइंट बता देता हूं. आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कहता है CAA इज नॉट अ लॉ. बस CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है? मैं CAA बताऊंगा, आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मत लेना, ठीक है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट वही था. CAA बार बार बात करेंगे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. संवैधानिक संशोधन बंद कर दीजिए आप.